Good morning, students. Welcome to the new lecture of Transportation Engineering 2. In last lecture, we have completed our second unit. So today we will start new unit number 3, which is basically points and crossing. Okay, as you can see in front of your screen, unit 3. It consists of various topics. First one is points and crossing. Okay, first topic is points and crossing, then railway signaling, interlocking, railway maintenance, inspection. All these topics are under unit 3. So today we will going to discuss about the points and crossing. Okay, so unit 3 is important. This is new for you because the points and crossing usually I don't think you have studied this topic before. Maybe in diploma, but in engineering this unit is important. Okay, the whole unit is on this points and crossing and signal thing. Okay, so let's see what is there. So there are some outlines of points and crossing topics. As you can see, first is points and crossing, introduction about points and crossing. Then after that, there is a thing called turnout. Okay, we will see what is turnout. And there are basically two types of turnout. First is left hand turnout and then right hand turnout. And after that, component of turnout, points and switches and crossings. Okay, this is basic outline of what we will study today. Okay, so we will study about these topics. Okay, outline of this topic is points and crossing, turnout, types of turnout, component of turnout, points and switches and crossing. Okay, this is basically the first part of unit 3. Okay, so first let's see what is points and crossing. So for example, just see what is points and crossing here. As you can see, there is one straight track. Okay, train is moving in this direction. Okay, and suppose train needs to divert from this main track. So you might have seen when the train moves. For example, this is a straight track. Okay, this is a straight track, and train, this is a basic straight track. Okay, this is a straight track, but train needs to divert from this track. So what will happen? There will be a diversion. है ना, आपने देखे होंगे जब एक स्ट्रेट ट्रैक है और ट्रेन को अगर इस साइड में टर्न लेना है, ठीक है, इस साइड मूव होना है, क्या होता है वहाँ पे एक डाइवर्जन होता है ना। ये जो डाइवर्जन हो रहा है ट्रेन का, ये हो सकता है ट्रेन इस साइड मूव हो जाए, हो सकता है ये ट्रैक जाके यहाँ पे पैरेलल एक ट्रैक बन जाए। ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है इस ट्रैक के डाइवर्जन में। जब ट्रेन ज़्यादा हो, ट्रैफिक ज़्यादा हो तो पैरेलल होता है, या ट्रेन को अगर यहाँ से टर्न लेना है, ठीक है, तो इस तरीके से ये डाइवर्जन होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिक पार्ट है यहाँ पे, ये जो बेसिक पार्ट है ना, इसे बोला जाता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का पार्ट। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, स्पेशली ये जो पार्ट है, ये जो कनेक्ट किया हुआ है ना यहाँ पे, ये इस ट्रैक से, ये जो दो ट्रैक से ये जो कनेक्टेड होते हैं अलग अलग, ये रेड वाला और ब्लू वाला आपको दिख रहा है, इस पॉइंट्स को बोला जाता है, ये जो दिख रहे हैं इनको बोला जाता है पॉइंट्स। ठीक है, इसे बोला जाता है पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट्स है। ठीक है, और उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये दो जो क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। ठीक है, ये होते हैं पॉइंट्स, ये हो गया पॉइंट्स, और ये होता है क्रॉसिंग। ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उसमें आपको काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, ये होता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। जब एक स्ट्रेट ट्रैक से आपको डाइवर्ट होना है, जो ट्रैक हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद जो चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं उसमें जो भी जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी उसे कहा जाता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। तो ये जो अटैच जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये डाइवर्जन, उसे बोला जाता है पॉइंट्स, और जो क्रॉस हो रहे हैं दो, उसे बोला जाता है क्रॉसिंग। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में देखते हैं अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इट इज द नेम गिवन टू द अरेंजमेंट which diverts the train from one track to another either parallel to or diverging from the first track। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, इट इज अ नेम गिवन टू द अरेंजमेंट, ये एक तरह का अरेंजमेंट है which diverts the train from one track to another track। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो,
ये एक ट्रैक से ट्रेन को दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट करना है, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसे बोला जाता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर या फिर आइदर पैरेलल, ठीक है ना। आइदर पैरेलल मीन्स क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि ये जो ट्रैक है, ठीक है ना, ये ट्रैक इसके पैरेलल भी चल सकता है, ये जो रेड वाला है डाइवर्ट भी हो सकता है और पैरेलल भी मूव हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो कंडीशन है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे बोला जाता है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर peculiar अरेंजमेंट यूज्ड इन परमानेंट वे टू गाइड द व्हीकल फ्रॉम डायरेक्शनल चेंज। बेसिकली पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जब ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज करना है, ट्रैक को डायरेक्शन चेंज करना है, तब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग यूज की जाती है, इतना याद रखिए, ठीक है ना। जब डायरेक्शन चेंज होगा तब पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का यूज आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। ये आपको क्लियर हो गया होगा, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जब ट्रेन को मूव करना है तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का यूज करेंगे, ठीक है ना। पॉइंट्स को बेसिकली देखिए स्विचेस भी बोला जाता है, ठीक है। पॉइंट्स को बेसिकली स्विच भी बोला जाता है, एक तरह का डिवाइस है दैट इज यूज टू डाइवर्ट द व्हील्स। व्हील जो है ट्रेन के, उनको डाइवर्ट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ट्रेन के जो व्हील्स देखते हो आप, वो ऑटोमेटिक डाइवर्ट हो जाते हैं पॉइंट्स की वजह से। ये आपको अभी पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा वीडियो देखोगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रॉसिंग क्या है, गैप इन द रेल दैट एनेबल्स द एक्चुअल डाइवर्शन, ठीक है ना। जो क्रॉसिंग, जहाँ पे दो ट्रैक क्रॉस हो रहे हैं उसमें गैप होते हैं, ठीक है ना, वो गैप की वजह से ही ट्रेन डाइवर्ट होती है, ठीक है ना। अभी हम इसको आगे और क्लियर देखेंगे। एक तरह का देखिए यहाँ पे आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन योर इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड एज टर्न आउट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज राइट हैंड टर्न आउट, क्योंकि ये राइट साइड में टर्न हो रहा है ना। यहाँ से देखोगे तो, फेसिंग डायरेक्शन से देखोगे तो राइट साइड पे टर्न हो रहा है, तो जो राइट साइड में टर्न हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड टर्न आउट। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये तो मेन लाइन हो गई ट्रैक की, ये जो थी ये होती है मेन ट्रैक हो गया दोनों। ये जो दो आपको रेल दिख रही है ये होती है स्टॉक रेल, ये जो मेन रेल है, ठीक है ना, ये जो देखिए कंटिन्यू हो रही है इसको बोलते हैं स्टॉक रेल। और जो रेड में दिख रहा है, ध्यान से देखिए, जो रेड में दिख रही है ना, इसे पॉइंट्स भी बोला जाता है, स्विच भी बोला जाता है, ब्लेड भी बोला जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसे बोला जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट इसे बोला जाता है टंग रेल। ये जो रेड में दिख रही है ना रेल्स, इसे बोला जाता है टंग रेल, ठीक है। टंग रेल इसे बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे काफी शार्प होते हैं, ठीक है। ये होता है स्ट्रेचर बार, ये स्ट्रेचर बार की मदद से ही टंग रेल जो है ना, कभी इधर शिफ्ट हो जाती है, कभी इधर शिफ्ट हो जाती है, ये मूव हो जाती है। रेड वाली जो टंग रेल दिख रही है ना, मूव होती है, कभी इधर चिपक जाएगी जाली स्टॉक रेल से, कभी ये स्टॉक रेल से चिपक जाएगी, ठीक है, जब भी ट्रेन को डाइवर्ट करने के लिए। अभी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेड वाली दिख रही है इसे बोला जाता है टंग रेल, ठीक है। और ये जो ब्लैक ये दिख रही है आपको, ये जो मेन लाइन जो दिख रही है इसे बोला जाता है स्टॉक रेल, ठीक है। ये टो है, हील है टंग रेल का, ये हम सारी चीजें अभी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो ये होती है क्रॉसिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, ये होती है क्रॉसिंग और ये होती है पॉइंट्स, ठीक है। बेसिकली ये जो सिस्टम, ये जो दिख रहा है आपको पूरा, ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट्स, ठीक है। इसको बोला जाता है पूरा को पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको दिस इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। ये चेक रेल्स है, व्हील को डाइवर्ट होने से रोकते हैं, ठीक है ना। व्हील अपनी डीरेल ना हो उसकी वजह से चेक रेल हम प्रोवाइड करते हैं ताकि व्हील डीरेल ना हो। ये क्रॉसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। क्रॉसिंग में ट्रेन डीरेल हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे चेक रेल्स का प्रोवाइड है। चेक रेल नाम से ही लग रहा है चेक करने के लिए, यानी उसे रोकने के लिए यूज करते हैं। विंग रेल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये रनिंग रेल्स ही बेसिकली स्टॉक रेल्स है, ठीक है। स्टॉक रेल आपको समझना जरूरी है यहाँ पे दो चीजें। सबसे पहले जो ब्लैक में जो लाइन आ रही है ना, स्ट्रेट जा रही है, इसे बोला जाता है स्टॉक रेल, ठीक है ना, जो मेन लाइन है स्टॉक रेल। और जो रेड में है, ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो रेड है, इसे बोला जाता है टंग। देखिए इसका शार्प एज है इसलिए बोला जाता है इसे टंग रेल, ठीक है, टंग रेल बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली टर्न आउट, राइट हैंड टर्न आउट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए अब हम एक वीडियो के जरिए पूरा हम इसको समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से टंग रेल जो है वो शिफ्ट करती है अपनी पोजीशन, ठीक है। एक वीडियो के जरिए आपको पूरी तरीके से अभी क्लियर होने वाला है, ठीक है, ठीक है। आपको अभी एक वीडियो दिख रहा है,
ठीक है, इस वीडियो में ध्यान से देखिए, हो जाएगा। ठीक है, देखिए व्हील्स जा रहे हैं, देखिए ट्रेन का किस तरीके से डाइवर्ट हुई वो। ठीक है, देखिए इस डायरेक्शन में मूव हो गई अभी। ठीक है ना, तो ये होता है टर्न आउट का। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ये पॉइंट्स का पार्ट है। ठीक है, और ये क्रॉसिंग का पार्ट है। ठीक है, ये क्रॉसिंग का पार्ट है पूरा। ठीक है, उसके बाद देखिए किस तरीके से टंग रेल शिफ्ट हुई। ठीक है, अब देखिए इसका डायरेक्शन इधर चेंज होगा। ठीक है, टंग रेल शिफ्ट होने की वजह से डायरेक्शन चेंज होगा, विदाउट टंग रेल वो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। फिर से रिपीट करके आपको दिखाता हूँ, देखिए एक बार। देखिए यहाँ, देखिए ये जो टंग रेल है किस तरीके से अभी शिफ्ट होगी, और ट्रेन का डायरेक्शन पहले जो इस साइड मूव हो रही थी अब वो इस साइड मूव होगी। देखिए यहाँ, ये देखिए टंग रेल शिफ्ट हुई, और ये जो शिफ्टिंग हो रही है टंग रेल की, ये जो टंग रेल शिफ्ट हो रही है ये हो रही है इस मशीन की वजह से। ठीक है ना, इस मशीन की वजह से ये टंग रेल शिफ्ट हो रही है। ठीक है, ये जो आपको मशीन दिख रही है इसे बोला जाता है POE, पॉइंट्स ऑपरेटिंग रॉड मशीन। ठीक है ना, ये जो रेड में आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेचर बार। ठीक है ना, ये स्ट्रेचर बार की मदद से ये जो टंग रेल है, ठीक है, टंग रेल है वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। टंग रेल को मूवेबल रेल भी बोला जाता है। टंग रेल देखिए ये रॉड की मदद से अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं असेंबलीज ऑफ टर्न आउट। यहाँ पे देखिए ध्यान से। ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे बोला जाता है स्विच। ठीक है, इसे बोला जाता है स्विच, इतना जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्रॉसिंग तक के जो पार्ट है स्विच और क्रॉसिंग के बीच में, उसे बोला जाता है लीड, और ये क्रॉसिंग का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे टंग रेल के बारे में आपको बता रहा था कि वो मूवेबल रेल है। ठीक है, स्टॉक रेल जो है वो फिक्स। कंपोनेंट ऑफ टर्न आउट देखिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेचर बार है। ठीक है, ये स्ट्रेचर बार की मदद से ये जो टंग रेल है कभी इधर शिफ्ट हो जाती है कभी इधर शिफ्ट। ये स्टॉक रेल है। ठीक है, स्टॉक रेल जो बेसिकली फिक्स्ड रेल है। ठीक है ना, फिक्स्ड है। स्टॉक रेल जो है वो रनिंग रेल है, फिक्स्ड रेल है। ठीक है, ये ट्रेन जो है वो स्टॉक रेल के ऊपर से आकर टंग रेल की मदद से ही टर्न होती है। ठीक है, स्टॉक रेल जो है वो फिक्स रेल है, दो स्टॉक रेल है ऑफकोर्स यहाँ पे। सिमिलरली देखिए यहाँ पे दो टंग रेल भी है। ठीक है, ये जो टंग रेल है, ठीक है, ये जो है वो टंग रेल है जो मूव हो रही है। टंग रेल जो है मूवेबल रेल है, टैपर्ड सेक्शन की मूवेबल रेल है, जो कि मूव होते रहती है, कभी इधर शिफ्ट हो जाती है कभी ये टंग रेल इधर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, टंग रेल आर बेसिकली मूवेबल रेल, तो आप बोल सकते हैं आप। ठीक है, जो टंग रेल मूव किसकी वजह से हो रही है, स्ट्रेचर रॉड की वजह से हो रही है, मशीन की वजह से हो रही है। ठीक है ना, ये देखिए ये जो पार्ट है जहाँ से ये टंग रेल स्टार्ट हो रही है ना, इसे बोला जाता है एक्चुअल टो ऑफ स्विच। ठीक है, इसे बोला जाता है एक्चुअल टो ऑफ स्विच। एक्चुअल टो ऑफ स्विच जहाँ से टंग रेल स्टार्ट हुई है, ये जो पॉइंट है स्विच का पॉइंट है, एक्चुअल टो पॉइंट है स्विच का। ठीक है, सिमिलरली ये देखिए यहाँ पे ये जो है टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में एक हील ब्लॉक डाला जाता है। हील ब्लॉक को बोल्ट्स के जरिए फिक्स किया जाता है। ठीक है ना, ताकि एक गैप मेंटेन रहे दोनों में। हील ब्लॉक के बाद ही टंग रेल मूव होगी, यहाँ हील ब्लॉक के बाद से टंग रेल जो है मूव होती है, यहाँ पे टंग रेल मूव नहीं होगी। हील ब्लॉक के जो इस साइड में टंग रेल मूव होते रहते हैं। ठीक है, हील ब्लॉक का काम है बेसिकली गैप प्रोवाइड करना बीच में। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, टंग रेल और वो चिपक जाएगी आगे से, तो उसकी वजह से ट्रेन डाइवर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम आगे। यहाँ पे असेंबली आप समझ लीजिए यहाँ पे पूरी तरीके से। ठीक है ना, हील ब्लॉक का काम जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेचर बार, स्ट्रेचर बार की वजह से टंग रेल जो है वो कभी इधर शिफ्ट हो जाएगी कभी इधर शिफ्ट हो जाएगी। मशीन के जरिए टंग रेल मूव होते रहती है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपने देखे टंग रेल किस तरीके से मूव हुई। ठीक है, मशीन की मदद से ही टंग रेल जो कभी इसमें चिपक जाएगी कभी ये स्टॉक रेल से चिपक जाएगी। ठीक है, जब टंग रेल देखिए यहाँ पे, जब टंग रेल अभी इसके इसे अटैच है, मतलब अब डायरेक्शन इसका इस साइड में चला जाएगा। टंग रेल जब इस साइड अटैच हो गई तो डायरेक्शन इसका इस साइड में। फिर टंग अगर ट्रेन को इस साइड मूव करना है, क्या होगा, टंग रेल यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगी तो ट्रेन इस साइड मूव होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेचर बार आपको आई होप समझा है, मशीन के जरिए उसे किया जाता है। क्रॉसिंग के इसमें देखिए आप, ये होती है विंग रेल, क्रॉसिंग के पार्ट में होती है विंग रेल। विंग रेल का फंक्शन भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, विंग रेल का फंक्शन जो है हम डिटेल में देखेंगे आगे क्रॉसिंग में। ठीक है, ये विंग रेल क्रॉसिंग में प्रोवाइड की जाती है ताकि ट्रेन जो है वो आराम से
एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, देखिए किस तरीके से अवे मूवमेंट होता है। काफ़ी आसानी से ट्रेन इस ट्रैक के ऊपर आएगी और आसानी से इस पर शिफ्ट हो जाएगी और विंग रेल अपनी पोजीशन से चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग, ये जो क्रॉसिंग का पार्ट है इसमें जो बीच में दिख रहा है इसे बोला जाता है थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, थ्रोट ऑफ क्रॉसिंग याद रखिए, जो बीच का पार्ट है इसका। उसके बाद देखिए जो दो ट्रैक मिल रहे हैं आपस में इसे बोला जाता है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है ना, जब ये जो दो ट्रैक यहाँ पे मिल रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है ना, इसे बोला जाता है क्रॉसिंग की नोज, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि एक थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग भी है, उससे कुछ डिस्टेंस पे थोड़ा सा एक इमेजिनरी होती है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, जो कि हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप आगे इसको और आगे मेंटेन कंटिन्यू करोगे तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे पूरी तरीके से ये दो ट्रैक मिल जाते हैं, उसे बोला जाता है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग काफ़ी क्लोज होते हैं एक दूसरे से। उसके बाद जहाँ पे क्रॉसिंग एंड होती है ऑलमोस्ट, उसे बोला जाता है हील ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, इसे बोला जाता है हील ऑफ क्रॉसिंग, यहाँ पे क्रॉसिंग एंड होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप, ये होती है चेक रेल। चेक रेल मैंने आपको बताया था, ट्रेन के जो व्हील्स है उसे डीरेल होने से रोकते हैं। चेक रेल का आपको आखिरी में आसानी से मैं बताऊंगा, बहुत ईजी है चेक रेल। ठीक है, तो ये चेक रेल्स है दोनों। ठीक है, मेन स्टॉक रेल की जस्ट बाजू में होती है, शॉर्ट होती है लेंथ इसकी, बस ट्रैक जो व्हील है उसे डीरेल होने से बचाता है ताकि ट्रेन ट्रैक को अपने छोड़े ना, उसे पकड़ के रखे। ठीक है, तो वो होती है चेक रेल। ठीक है, ये होती है दो चेक रेल आपको दिख रही है। चेक रेल हमेशा क्रॉसिंग के अपोजिट में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चेक रेल देखिए जहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है ना, इसके जस्ट अपोजिट में चेक रेल प्रोवाइड करेंगे। ये क्रॉसिंग है, इसके जस्ट अपोजिट में चेक रेल प्रोवाइड करेंगे। अभी आप देखोगे कि कैसा वो वर्क करता है चेक रेल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेक रेल। अब देखते हैं हम व्हील किस तरीके से गाइड होता है टंग रेल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए, एज यू कैन सी द टंग रेल, थिकनेस ऑफ टंग रेल देखिए यहाँ पे कैसी शार्प एज है, और धीरे धीरे टंग रेल जैसी जैसी बढ़ता है ना, एक मेन रेल बन जाता है वो। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना शार्प एज है उसका, इसलिए इसे टंग रेल बोला जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ध्यान से देखो अभी, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक की ये जो लेंथ दिख रही है ना, ये मूव होती है। और मूव किसकी वजह से होती है? पीओई मशीन की वजह से। ये मशीन जो है ना, ये इसे इस साइड मूव करती है और इस साइड मूव करती है। रॉड की मदद से, स्ट्रेचर रॉड की वजह से मशीन टंग रेल को खींचती है इधर, ठीक है ना, स्ट्रेच करती है, इसलिए बोला जाता है दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रेचर बार। तो ये टंग रेल जो है स्ट्रेचर बार की मदद से मूव होते रहते हैं। ठीक है, ये होता है टंग रेल। देखिए कितना शार्प है टंग रेल का। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी व्हील किस तरीके से डाइवर्ट होगा। देखिए ट्रेन का ट्रैक है, अभी जो मूव हो के किस तरीके से वो डाइवर्ट होगा। देखिए ठीक है, पीओई ब्रॉड आपको पता है, ये टंग रेल, ये स्टॉक रेल है यहाँ पे। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्टॉक रेल, दिस इज कॉल्ड टंग रेल। टंग रेल जो है वो मूव होते रहेगी, स्टॉक रेल अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगी। ये स्ट्रेट ट्रैक था, अब देखिए किस तरीके से वो डाइवर्ट होगा इस डायरेक्शन में। देखिए ये देखिए टंग रेल यहाँ पे आ गई। और इस इमेज को भी देखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ इस इमेज को भी देखिए और इस इमेज को भी देखिए। ठीक है, साथ में देखिए दोनों को एक साथ। देखिए अब देखिए मूव होना चालू हुआ, यहाँ पे आई टंग रेल, और टंग रेल आने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से वो डाइवर्ट होना चालू हो गया वहाँ से। ठीक है, टंग रेल अब ये इस साइड में ऑटोमेटिक मूव हो जाएगा। टंग रेल यहाँ पे ऑटो, ठीक है, यहाँ पे देखिए देखिए किस तरीके से, फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए दोनों इमेज को देखते रहो। ठीक है, देखो यहाँ पे डाइवर्ट होना चालू हुआ, टंग रेल यहाँ से चिपकी हुई थी, इससे अटैच थी, डाइवर्ट होना चालू हुआ। इस व्हील को भी देखिए इस तरीके से पोजीशन चेंज किया और ये डाइवर्ट हो गया। ठीक है, ये होता है टंग रेल और स्टॉक रेल का काम। ठीक है, अभी देखिए आप, अब इस इमेज को देखो यहाँ पे, टंग रेल जब स्टार्टिंग में था, ठीक है ना, टंग रेल जब स्टार्ट हो रहा था तो इसकी थिकनेस देखिए कैसी थी, और ये मेन स्टॉक रेल है, ये टंग रेल है। पहले टंग रेल की पोजीशन ऐसी थी, देखिए यहाँ पे व्हील यहाँ रखे, ठीक है, इस तरीके से पोजीशन फिक्स थी इसकी। जैसे जैसे मूव होने लगा,
टंग रेल जो है वो हाइट में भी बढ़ने लगी और अपनी चौड़ाई में भी बढ़ने लगी। ठीक है, इस तरीके से देखिए टंग रेल जो है कैसा वो एक शॉर्ट रेल से एक मेन रेल में कैसी कन्वर्ट हो रही है। धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है उसका। धीरे धीरे देखिए हाइट में भी बढ़ रही है और विड्थ में भी बढ़ रही है। ठीक है, धीरे धीरे करके जैसे व्हील आगे मूव होगा टंग रेल जो है वो मेन रेल बन जाएगी। टंग रेल जो है वो मेन रेल बन जाएगी जैसे जैसे व्हील आगे मूव होना चालू हुआ। ठीक है ना, टंग रेल जो है वो मेन रेल में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए किस तरीके से ये हो रहा है ऑपरेशन, अच्छे से देखिए इसे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक तरीके से मेन रेल में देखिए किस तरीके से डिस्टेंस हो रही है। स्टॉक रेल से टंग रेल किस तरीके से अवे मूव कर रहा है देखिए। और देखिए यहाँ पे अब थोड़ी देर के बाद वो मेन रेल बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद वो मेन रेल बन गया। ठीक है, इस तरीके से टंग रेल देखिए एक शॉर्ट रेल था शार्प एज से किस तरीके से मेन रेल बना है। टंग रेल जो शार्प एज से किस तरीके से एक मेन रेल में कन्वर्ट हुआ है। यह है पॉइंट्स का काम। ये जो हमने पूरा ऑपरेशन देखे अभी ये पॉइंट्स का है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स का खेल है। इस तरीके से ट्रेन जो है वो डाइवर्ट। अभी हम देखते हैं थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है। इंपॉर्टेंट है थ्रो ऑफ स्विच। यहाँ पे देखिए टंग रेल दिख रही है आपको, पीओई रॉड से स्ट्रेचर बार। ये जो डिस्टेंस है स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का, ये जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है थ्रो ऑफ स्विच। ये जो डिस्टेंस होता है स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज थ्रो ऑफ स्विच। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू फॉर एग्जिस्टिंग 95 mm और अगर नया प्रोवाइड करना है तो 115 mm। ठीक है, जो डिस्टेंस होता है 95 mm टू 115। देखिए किस तरीके से टंग रेल मूव हुई। अभी देखिए आपने ट्रेन को डाइवर्ट करना इस डायरेक्शन में, टंग रेल इस डायरेक्शन में मूव। ये जो मिनिमम डिस्टेंस है स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का कितना होता है 95 एग्जिस्टिंग और नया अगर प्रोवाइड करना है वहाँ पे तो 115 mm डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि 95 से 115 mm की रेंज है। ठीक है, टंग रेल। ठीक है, ये होता है टंग रेल। ठीक है, देख लीजिए जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज थ्रो ऑफ स्विच। थ्रो ऑफ स्विच बोला जाता है टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच का डिस्टेंस। अभी देखते हैं जो हील स्विचेस है वो फिक्स्ड और लूज कैसी होती है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो हील ब्लॉक दिख रहा है। ठीक है ना, ये जो हील ब्लॉक है ये फिक्स्ड भी होता है और मूवेबल भी होता है। सबसे पहले देखते हैं हम फिक्स्ड हील स्विच क्या होता है। ये जो ब्लॉक अगर फिक्स्ड रहा तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए वीडियो में देखेंगे आप। ये जो ब्लॉक है अगर फिक्स्ड रहा तो क्या होता है। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। यहाँ पे ये फिक्स्ड है बोल्ट्स की मदद से एक डायरेक्शन में। ये जो ब्लॉक है कास्ट आयरन का ब्लॉक होता है। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ के बाद से ट्रेन जो है ना फिक्स्ड हील ब्लॉक के बाद से स्टॉक रेल अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद अगर आप देखोगे तो मूवेबल भी होते हैं। ये जो है लूज हील ब्लॉक या मूवेबल हील ब्लॉक होते हैं। ये लूज होते हैं थोड़े से। यहाँ पे जो दो स्क्रू है बाद के दो बोल्ट है इसे लूज छोड़ा जाता है और इसके बाद से ही टंग रेल जो है वो मूव होना इधर उधर स्टार्ट होती है। देखिए इस तरीके से अभी मूव हो गई, फिर इस डायरेक्शन में टंग रेल मूव हो जाएगी। देखिए क्रॉसिंग पे जब व्हील्स आते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रॉसिंग दिख रही है आपको। देखिए व्हील यहाँ पे आ रहे हैं, मूव कर रहा है व्हील। ठीक है ना, अभी जो लोड है टोटल, ठीक है ना, ये एक स्टॉक रेल के ऊपर था। ठीक है, अभी देखिए ट्रेन यहाँ पे जब क्रॉसिंग पे आएगी धीरे धीरे करके देखिए यहाँ पे ये जो विंग रेल है, यहाँ पे जो मेन रेल है स्टॉक रेल, ये विंग रेल बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये विंग रेल बन जाएगा और धीरे धीरे देखिए यहाँ पे ये देखिए ये कितना क्लोज आते जा रहा है इसके। ये क्लोज आते जा रहा है और विंग रेल अवे मूव कर रहा है। अभी जो लोड है विंग रेल और ये मेन रेल दोनों पे है। ठीक है, अब विंग रेल से धीरे धीरे विंग रेल इधर मूव हो गया तो क्या होगा, जो पूरा लोड है वो किस पे आ जाएगा, ये वाले ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, जो मेन लाइन है उस पे आ जाएगा। देखिए किस तरीके से अवे मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये जो व्हील है एक्चुअल इस पे रन करेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो देखिए यहाँ पे जो चेक रेल है ये से इस साइड मूव होने नहीं दे रहा है। अभी हम आगे चेक रेल भी देखेंगे। तो इस तरीके से ये क्रॉसिंग के ऊपर आसानी से मूव हो जाता है। इसमें विंग रेल बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग रेल देखिए किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है उसको। फिर ये देखिए यहाँ पे एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, ये एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। देखिए उसके बाद फिर से देखिए जब अपोजिट में आएगा तो पूरा एक्शन अपोजिट का है। ठीक
पूरा जो एक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा उसका, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है। क्रॉसिंग में विंग रेल इंपॉर्टेंट है जो कि व्हील को इधर साइड मूव होने से रोकता है। ठीक है, ये गैप देखिए इस तरीके से फिल की जाती है नोज की, ताकि ट्रैक में कोई व्हील में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्रॉसिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चेक रेल में आपको बता दूं चेक रेल के फंक्शंस क्या होते हैं। चेक रेल नाम से पता चल रहा है कि चेक कर रहा है, यानी कि व्हील को डीरेल होने से रोक रहा है। देखिए यहाँ पे ये चेक रेल है, ये चेक रेल है, और यहाँ पे क्रॉसिंग के जस्ट अपोजिट में चेक रेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो हाँ, यहाँ डायग्राम भी देखते रहिए और नीचे भी देखिए, ये चेक रेल है, ठीक है, और ये स्टॉक रेल है। ठीक है, अब ट्रेन जो मूव हो रही है, देखिए जब क्रॉसिंग पे आएगी ना, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे चांसेस होते हैं कि ट्रेन इस साइड मूव हो जाए, लेकिन चेक रेल इस फ्लैंज को पकड़ के रखता है। देखिए इस फ्लैंज को पकड़ के रखेगा चेक रेल, चेक रेल इसे मूव होने नहीं देगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, चेक रेल इसे रोक के रखेगा व्हील को, अदरवाइज देखिए यहाँ पे व्हील जो है वो इस साइड मूव हो जाता था, लेकिन चेक रेल का फंक्शन क्या है, इसे प्रॉपर गाइड करना क्रॉसिंग के ऊपर, है ना, प्रॉपर गाइड करना है इसको व्हील को, चेक रेल का फंक्शन। और बिल्कुल क्रॉसिंग के अपोजिट चेक रेल प्रोवाइड करते हैं, ताकि व्हील फ्लैंज अपनी पोजीशन से इधर साइड मूव ना हो। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको वीडियो के जरिए पूरा क्लियर हुआ है। ठीक है ना, जो हमने अभी वीडियो में देखे उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अभी हम आगे देखते हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, कोई इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये टर्न आउट, अभी आपने एक टर्न आउट ही देखे। ठीक है ना, किस तरीके से स्टॉक रेल मूव होती है, किस तरीके से स्टॉक रेल स्ट्रेचर बार की मदद से मूव होती है। अभी ये डायग्राम देखोगे तो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, चेक रेल क्यों प्रोवाइड करते हैं, विंग रेल का काम क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अभी देख ली। ठीक है, टर्न आउट क्या होता है, देखिए इन केस ऑफ रोड्स। ठीक है, आगे देखते हैं टर्न आउट के बारे में। टर्न आउट क्या है बेसिकली, इन केस ऑफ, जैसे आपको पता है रोड्स में गाड़ियां जो है वो आसानी से मूव हो सकती है। ठीक है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, रोड आप कैसा भी रहे आप गाड़ी को आराम से टर्न कर सकते हो। रोड को प्रॉपर टर्न करना ऐसा तो जरूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ट्रेन में पॉसिबल नहीं है। जब डायरेक्शन चेंज करना है तो काफ़ी सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। विदाउट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग ट्रेन अपना डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर सकती, और ट्रेन के अंदर स्पेशल टर्निंग डिवाइसेस होते हैं। वो स्पेशल टर्निंग डिवाइसेस और पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की मदद, दोनों की हेल्प से ही ट्रेन जो है वो टर्न होगी। उसका ऑपरेशन इतना आसान नहीं है रोड जैसा। ठीक है, तो ये जो चेंज करती है ट्रेन अपना डायरेक्शन, ये पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की हेल्प से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चेंज इज मेड पॉसिबल विद द प्रोविजन ऑफ टर्नआउट। विदाउट टर्नआउट के, टर्नआउट बेसिकली क्या है, टर्नआउट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, टर्नआउट जो है वो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का अरेंजमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में ये कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, टर्नआउट कंसिस्ट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, इंफॉर्मेशन सेंड टू लोको पायलट यूजिंग सिग्नल। देखिए जब भी कोई टर्नआउट आ रहा होता है आगे, तो लोको पायलट जो है वो ट्रेन जो मूव ड्राइवर है जो ट्रेन का, उसे सिग्नल भेज दिया जाता है। ठीक है, कि आगे कोई टर्नआउट है या आगे कोई ट्रैक डाइवर्जन है, ये सारी चीज़ें सिग्नल्स के जरिए उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो टर्नआउट बेसिकली जो है पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का अरेंजमेंट है। जब ट्रेन को अपना डायरेक्शन चेंज करना है तो टर्नआउट की मदद से डायरेक्शन चेंज किया जाता है। ठीक है, देखिए फिर से आगे, सिंपल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग बाय द मैनिपुलेशन ऑफ विच द ट्रेन फ्रॉम वन ट्रैक मे बी डाइवर्टेड टू अनदर ट्रैक और ब्रांच लाइन और टू साइडिंग इज नोन एज टर्न आउट। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जब ट्रेन डाइवर्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज टर्न आउट। ठीक है, two tracks either merge or diverge or two tracks parallel to each other but still are connected to each other. This connection helps in changing the direction of train. दो ट्रैक अगर पैरेलल भी है, ठीक है ना, दो ट्रैक अगर पैरेलल भी है तो भी पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की मदद से वो चेंज होती है। थोड़ा सा लाइन कट रही है, इसका मीनिंग यहाँ पे ये लिखा है, फॉर दिस पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर यूज। ठीक है, फॉर दिस पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर यूज। ठीक है, आगे देखिए, टर्नआउट बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीड रेल्स विद कर्व रेल्स। आप देखेंगे वहाँ पे कर्व होता है इस तरीके से, फास्टनिंग फिक्सचर्स प्रोवाइड किया जाता है, कर्वेचर है उसमें, लीड रेल्स है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में देखेंगे। टर्नआउट जो है वो स्टेशन में प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम। आपने देखे होंगे जब ट्रेन एक स्टेशन के आसपास होती है तो ट्रैक जो है वो डाइवर्ट होना चालू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना होता है ट्रेन को। अगर जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म है उतने ज़्यादा टर्नआउट्स होते हैं, है ना।
ये चीज़ें आपने देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इमेज, इससे आगे कोई स्टेशन है, ये 2 ट्रैक है, तो ये देखिए डाइवर्ट होना होना स्टार्ट हो गए, बहुत सारे टर्नआउट्स आ गए, ये टर्नआउट आ गया, फिर ये आगे एक टर्नआउट, इस तरीके से टर्नआउट्स आ गए, ठीक है। ट्रेन जब 2 लाइन से आती है तो इसे अलग अलग स्टेशन पे जाना होता है, अलग अलग स्टेशन की बजाय हम बेटर वर्ड है प्लेटफॉर्म पे जाना होता है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, इसलिए यहाँ पे स्टेशन के आसपास टर्नआउट प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये एक इमेज है टर्नआउट की। आप मुंबई गए होंगे, वहाँ पे सीएसटी स्टेशन पे देखे होंगे, नागपुर स्टेशन में भी है टर्नआउट बहुत सारे, सीएसटी स्टेशन में बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा खड़गपुर स्टेशन में बहुत ज़्यादा है टर्नआउट, ठीक है। टर्नआउट देखिए बेसिकली 2 टाइप के हैं, राइट हैंड टर्नआउट, लेफ्ट हैंड टर्नआउट। अब आपको नाम से क्लियर हो रहा है, जो कि राइट साइड में टर्न हो रहा है दैट इज राइट हैंड, और जो लेफ्ट साइड में टर्न हो रहा है मेन ट्रैक से उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड टर्नआउट। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेट ट्रैक था, यहाँ से राइट साइड में मूव हुआ वो, अगर डायरेक्शन ये है, इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन ऑफ फेसिंग, ट्रेन इस डायरेक्शन में आ रही है तो अगर इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, फिर मेन ट्रैक से राइट साइड में मूव हो रही है, राइट साइड में मूव हो रही है, तो इसे बोला जाता है राइट हैंड टर्न आउट, राइट हैंड टर्न आउट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे, if a train is diverted from main track, is diverted to the right of the main route in the facing direction, ये facing direction है, ठीक है, ट्रेन इस डायरेक्शन से facing direction, then diversion is known as right hand turn out, ठीक है। इस डाइवर्शन को बोला जाता है राइट हैंड टर्न आउट। उसके बाद देखिए लेफ्ट हैंड टर्न आउट। अब ये देखिए कि ट्रेन फॉर एग्जांपल उस डायरेक्शन से आ रही है, बेटर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ट्रेन इस डायरेक्शन से आ रही है और वो ट्रेन जो है वो उस डायरेक्शन से आ रही थी और वो लेफ्ट साइड में मूव हो रही है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव हो गई, वो यहाँ से आ रही थी और लेफ्ट साइड में मूव हो गई, यहाँ से फेसिंग डायरेक्शन के लिए लेफ्ट ये होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रेन जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो गई, जब लेफ्ट साइड मूव हो गई तो उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट, ठीक है। इफ अ ट्रेन इज डाइवर्टेड फ्रॉम मेन ट्रैक, इज डाइवर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द मेन रोड इन द फेसिंग डायरेक्शन, देन द डाइवर्जन इज नोन एज लेफ्ट हैंड टर्न आउट, ठीक है। अगर वो लेफ्ट साइड में डाइवर्ट हो रही है तो उसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड टर्न आउट, ठीक है, लेफ्ट हैंड टर्न आउट बोला जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये इमेज में आप देख रहे हो कि टर्न आउट किस तरीके से उसकी कंपोनेंट है। मैंने आपको अभी वीडियो में जो देखे आपने पूरी तरीके से डिटेल में आपको बता दिया, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए राइट हैंड टर्न आउट है एक तरीके का, इसके कंपोनेंट देखिए, ये गेज है, ठीक है ना, ये स्विच रॉड है जिसकी वजह से क्या होता था, ट्रेन में जो स्टॉक रेल है वो मूव होती है, ठीक है। ये देखिए ये पूरी मशीनरी है, कनेक्टिंग रॉड है जिसकी वजह से पूरा मूव होता है। थ्रो ऑफ स्विच मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस है स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच का। अब ये जो कर्व रेल है, देखिए कर्व मेन रेल, ठीक है, ये जो कर्व हो रही है कर्व मेन रेल, ये चेक रेल है, ये चेक रेल है, ये चेक रेल है। यहाँ पे एक नई चीज आपको दिख रही होगी, ये फ्रॉग है, ये जो है विंग रेल के पास में एक तरह का एक्सपांशन गैप होता है, ठीक है, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये गैप, इसे बोला जाता है फ्रॉग, ठीक है। तो ये देखिए ये डिस्टेंस है अलग अलग, जनरल एक इमेज है राइट हैंड टर्न आउट की, एग्जाम में आता है, आपको ये सारी चीजें बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। मैंने आपको स्विच लेंथ बताया, स्विच जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे हील ब्लॉक आता है, स्विच से लेके हील ब्लॉक तक के जो डिस्टेंस है उसे बोला जाता है स्विच लेंथ। फिर जो है हील ब्लॉक से लेके क्रॉसिंग के स्टार्टिंग तक के जिसे बोला जाता है लीड। फिर उसके बाद लीड के बाद से जो चालू हो रहा है उसे बोला जाता है क्रॉसिंग की लेंथ, ठीक है। और जो पूरा ये ऑपरेशन है, ठीक है, ये जो पूरी लेंथ है स्विच से स्टार्ट होता है, जो पॉइंट से स्टार्ट होकर क्रॉसिंग के थ्रॉट के जस्ट आगे, ठीक है, यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, ठीक है, इसे बोला जाता है एक्चुअल लीड, इसे बोला जाता है एक्चुअल लीड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बताया था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी आपको डायग्राम में दिख समझ में आए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बना देना, ठीक है, एग्जाम में। उसके बाद एक और दिखाता हूँ आपको, ये भी एक और ये डायग्राम भी बना सकते हो, ये भी अच्छी डायग्राम है। देखिए यहाँ पे ये फेसिंग डायरेक्शन है, ये स्टॉक रेल है, ठीक है, ये स्टॉक रेल, थ्रो ऑफ स्विच है, अभी मैंने आपको बताया सारी चीज़ें। ये कर्व किस तरीके से ले रही है, ये थ्रॉट है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग देखिए ये है, और ये थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग है, ठीक है।
वो डायग्राम में मैंने आपको पूरा बताया था। ठीक है, तो ये पूरा अरेंजमेंट है टर्न आउट का। ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आता है, इमेज बनाना आता ही है। टर्न आउट एक आएगा एग्जाम में, उसकी डायग्राम बनाना आपको पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिटेल में आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी टर्न आउट। ठीक है, अभी देखिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्न आउट के एक एक कंपोनेंट को अच्छे से पढ़ेंगे और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डायग्राम में मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझा है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।